Hello, learners. Let's today learn about adjectives and adjectives' degrees of comparison. So, first, we need to know what are adjectives. If we talk about adjectives, in Hindi, adjectives are called विशेषण, right? विशेषण किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, right? Adjectives are called describing words in English. Describing words. Now, what do they describe? Right? They describe noun or pronoun in a sentence. So, with this, we come to the definition of adjectives. Adjectives are describing words. They describe noun or pronoun. Or we can say that an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun, right? Suppose if I say, she is a beautiful woman. Now see, women, and what kind of women? Beautiful women. So these words are describing our subject she, which is a pronoun. They're adding further to the meaning or explaining about her, what kind of woman she is, right? Beautiful. So these are called adjectives. Now, how many types of adjectives are there? So when we talk about adjective, we have adjective of quality, adjective of quantity, then adjective of number, adjective of possession or possessive adjective, demonstrative adjective, and interrogative adjective. Apart from this, you would have also learned about proper adjectives, which are a part of adjective of quality. Another, distributive adjectives, which can be studied under adjective of number, right? So these are the kinds of adjectives that we have. So from the name itself, it is very clear. Adjective of quality means which tells us about the quality of a noun or a pronoun. For example, if I say that it is a difficult question, what kind of question? Difficult. So it is telling us about the quality कि कैसा है, जो question है वो कैसा है, कठिन है, difficult है. So it can be termed as adjective of quality. Difficult is adjective of quality. Next is quantity. Quantity, from the name itself it is clear that quantity, adjective of quantity are those which describe uncountable nouns. जिनको हम count नहीं कर सकते, उन noun को जो भी adjective describe करते हैं वो quantity हो जाते हैं. Like for example, enough food, कितना, काफ़ी, इनफ, राइट. फूड को हम काउंट नहीं कर सकते, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसको इनफ एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है. सो दिस विल बी अवर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इफ आई से सम वाटर, राइट, सम water. Water is also uncountable noun and some is defining or describing water. कितना पानी हमें चाहिए, right? So some will also be adjective of quantity. Next is number. Number, adjective of number are those adjectives which can describe like countable noun. If I say two people, so people like are countable. So two is here adjective of number. How many people? Two people, right? Now one doubt always occurs अमंग मैनी ऑफ अस, जो ये सम है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह भी यूज़ हो सकता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह भी यूज़ हो सकता है. तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि सम हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सम पीपल, अब सम यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह यूज़ हुआ है. क्यों? क्योंकि ये पीपल को डिस्क्राइब कर रहा है, पीपल काउंटेबल है, इसलिए ये यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह यूज हुआ है. लेकिन प्रीवियस एग्जाम्पल में सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि ये वाटर को डिस्क्राइब कर रहा है, वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, राइट. पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेशन, बिलोंगिंग, वो एडजेक्टिव जो बिलोंगिंग शो करते हैं कि कोई चीज़ किसी की है, तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं. जैसे माई हाउस, किसका घर है? मेरा घर है, तो माई हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा. डेमोन्स्ट्रेटिव, चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए जो एडजेक्टिव्स यूज होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसे कि दिस हाउस, दैट पेन, तो दिस,
दैट, दीज, दोज, ये जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव्स, क्वेश्चंस पूछने के लिए जो एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, जैसे विच, वे, तो कौन सा रास्ता, तो विच हमारा इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स. प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? तो जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं हमारे, जैसे इंडिया, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, राइट? तो इंडिया से बन गया इंडियन, इंडियन डॉक्टर्स, तो जो हमारा इंडियन है ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है. चाइनीज, सॉरी इसे हो गया चाइनीज प्रोडक्ट्स, तो चाइना से चाइनीज़ बन गया, चाइना हमारा प्रॉपर नाउन है, इससे चाइनीज़ बन गया, और वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? प्रोडक्ट्स को. किस टाइप के या कौन से प्रोडक्ट? चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, तो चाइनीज़ हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में वो एडजेक्टिव्स आते हैं जो ग्रुप में भी इंडिविजुअल को रिफर करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल 10 कैंडिडेट इंटरव्यू देने आए, बट हमें कहना है नीदर कैंडिडेट वॉज सिलेक्टेड. नीदर, राइट? तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. इनके एग्जाम्पल हैं एवरी, नाइदर, आइदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं. इनको हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं. दे आर अंडर सेम कैटेगरी, राइट? सो दिस वाज अबाउट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, right? This was all about kinds of adjective. Now a major confusion occurs like among many of us कि एक सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो वर्ड है हमारा वो एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है या एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है. जैसे कि दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है. अब हमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज है? हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट इन अ सेंटेंस? सिमिलरली जो इंटैरोगेटिव प्रोनाउन्स और एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, राइट? इंटैरोगेटिव प्रोनाउंस या इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव्स. तो एक मेजर कन्फ्यूजन रहता है आइडेंटिफाई करने के लिए. अगर कोई चीज़ हमें आती है कि किसी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करो, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एक एग्जाम्पल की तौर पे इसको समझते हैं. अगर मैं लिखूँ दिस हाउस इज़ माइन, ये हमारा पहला सेंटेंस है. दूसरा दिस इज़ माई हाउस, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है. सो नाउ लेट्स सी, राइट, हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज़ एडजेक्टिव विच इज़ प्रोनाउन. तो यहाँ पे दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद हमारा नाउन आया है, राइट? दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद हमारा एक नाउन आया है, तो हमारा ये दिस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट? और ये भी दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है, लेकिन इस दिस के बाद नाउन ना होके वर्ब है, यानी कि इस दिस ने नाउन को रिप्लेस किया है, तो क्या होगा? ये प्रोनाउन होगा, राइट? व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, दे रिप्लेस अ नाउन. तो ये एक बहुत ईजी ट्रिक है, राइट, टू अंडरस्टैंड वेदर द गिवन वर्ड इज एडजेक्टिव और प्रोनाउन, जहाँ पे भी हमें कन्फ्यूजन होगा, राइट? सो ये दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा और सेकंड सेंटेंस में जो दिस है वो प्रोनाउन हो जाएगा. सिंपल, एक चीज़ याद रखनी है, एडजेक्टिव एंड नाउन आर फ्रेंड्स, राइट? ये दोनों फ्रेंड्स हैं. और प्रोनाउन क्या करता है? नाउन की जगह ले लेता है, राइट? तो ये दोनों हमें साथ में बहुत रेयर देखने को मिलेंगे. मैं बहुत रेयर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस में ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्लेस रहते हैं, राइट? बट इन दोनों में डिफरेंस क्वाइट क्लियर है. एडजेक्टिव्स एंड नाउन आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे विल बी सीन टुगेदर. एंड प्रोनाउन ऑब्वियसली नाउन की जगह ले लेता है, तो वो नाउन को अपनी जगह से हटा देता है, तो आपको प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं मिलेगा. एंड दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज एडजेक्टिव और प्रोनाउन. यहाँ पे देखो पोजेसिव, माइन, इसके आसपास हमें कोई भी नाउन नहीं दिख रहा है, तो ये एक प्रोनाउन है. लेकिन यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में देखो, जो माई है उसके बाद हाउस आया है, माई के बाद हाउस आया है, तो माई क्या है? एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है, राइट? सो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू.